मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मानहानि मामले में फंसे राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार कोर्ट से उनको बड़ा झटका मिल रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी इसी तरीके से कोर्ट के पचड़े में फंसते रहे तो उनके लिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। संसद सदस्यता उनकी छीन ली गई और तमाम मुश्किलों का सामना वो कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो बैकफुट पर आकर के ही अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पर्दे के पीछे से वो अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही चुनाव ना लड़ पाए राहुल गांधी, लेकिन जनता के साथ संपर्क करने की कोशिश वो पूरी तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में भी हमने देखा, यानी कि 2024 का प्लान राहुल गांधी ने यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। वो चाहते हैं कि जनता को ये दिखाने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से तानाशाही की राजनीति करके राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, उनकी संसद सदस्यता उनसे छीन ली गई। तमाम ये जो षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी शुरुआत से ही ये कहते हुए नजर आए हैं कि अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो उनकी संसद सदस्यता उनकी छीन लेते हैं और किस तरीके से वो डिफेमेशन की जो बात है वो अध्यक्ष ओम बिरला के सामने कहते भी हैं, लेकिन ओम बिरला उनकी एक नहीं सुनते। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ये बात मेंशन की है कि अध्यक्ष ओम बिरला से उन्होंने गुजारिश की कि एकदम से मेरी संसद सदस्यता कैसे छीनी जा सकती है, आप इसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो इस पूरे मसले पर इसलिए सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अध्यक्ष ओम बिरला पर क्या कुछ कहा, सुन। My speech was expunged. I wrote a letter to the speaker with a detailed explanation on the defense industry, on the airports, with press clippings, supporting documents, legal documents, and said this is the supporting foundation of my speech. I have not made this speech, I have not invented this. This is detailed research, here it is. Nothing happened. Nothing was revoked. My speech today is not part of the record of Parliament. The same, by the way, was done with Mr. Kharge. After that, BJP ministers lied about me in Parliament. They made the statement to distract from the Adani issue. The whole game, disqualification, and all these statements are to distract from the central question, whose money is it? 20,000 crores, whose is it? Kiska hai ye? That's the main question. The whole thing is to distract. So, they said that I've asked foreign forces to help India. Most ridiculous statement. I have never made such a statement. You can look at all the conversations I had in the United Kingdom. Not one such statement was made. In fact, I said this is India's problem. India has to resolve this problem, right? A minister lies on the floor of the House. I wrote to the Speaker and I said, Speaker, sir, it is my right as a member of Parliament, when somebody makes an accusation, to state my position. Please let me state my position. The first letter is not answered. I then write a second letter with more details, saying the names and what was said. Still no answer. I then go to the Speaker's chamber and I say, Speaker, sir, what is going on? We live in a democracy. You are the defender of that democracy. Why are you not letting me make my statement? The Speaker smiles and says, I cannot do that. Come and have a cup of tea with me. Right? So this is the whole drama that is being orchestrated to defend the Prime Minister from the simple question, whose 20,000 crore rupees, whose $3 billion went to Mr. Adani shell companies? Haji Mohit,
एक मिनट, सबको राहुल मौका जी, मिलेगा। राहुल जी, मोहित दुबे हूं मैं। मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों By the way, sorry, I just need to finish that. I left out a part. Look, I'm here defending the democratic voice of the Indian people. I will continue to do that. I'm not scared of these threats, of these disqualifications, of these allegations, of these prison sentences. I don't care. I'm not scared of them. Okay? These people don't understand me yet. I am not scared of them. They are used to everybody being scared of them. I am not scared of them. Right? And I will continue to ask the question, what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? It is an old relationship. It is a relationship that began when he was Chief Minister of Gujarat. Mr. Adani constructed the idea of Resurgent Gujarat, organized all that. This is a partnership. It's a close partnership. I'm going to keep asking that question. राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूं। मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों के परिवार से आते हैं। आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए। आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया। क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। हाँ जी, अनवर। आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है। तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का। हाँ जी, अनवर। सर, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? संजय मिश्रा। और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता। संजय मिश्रा। लेकिन आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है। ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? देखिए भैया, चाहे स्टेट हो, चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। शांत हो जाइए। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूं। हाँ, सुप्रिया। सर, राहुल सर, बीजेपी के जो लीडर्स आप पे अटैक कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और इसके अलावा वायनाड, वहां पर जब से खबर गई है, वहां पे लोग बहुत डिसबिलीफ में हैं, प्रोटेस्ट भी इरप्ट हो रहा है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं अपनी, देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है। तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा।
उनका देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं, कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए। तो सुना आपने किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो बड़ा आरोप यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर भी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी। यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई और यह भी कहा गया कि अध्यक्ष ओम बिरला जो है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी को एक तरीके से फंसाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने की और उसी के तहत अध्यक्ष ओम बिरला ने तुरंत झटके में ही फैसला करते हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता उनसे छीन ली गई। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी लड़ पाएंगे, और अगर नहीं लड़ पाते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी आगे कुछ करती हुई नजर आएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किल राहुल गांधी चुनाव ना लड़के भी जो है वो चुनौती दे पाएंगे उनको? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।